نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وهو العلی العظیم وقال عز وجل كما ورد في الآخرة سورة الرعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ان اسمع بنت امیس رضی اللہ عنہا قالت علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن عند الکرب اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنی کے لیکچر کی سیریز جو ہم نے گزشتہ ہفتے شروع کی تھی، جس کا پہلا لیکچر اسماء الحسنی کا انٹروڈکشن تھا، انشاءاللہ آج کے اس دوسرے لیکچر میں ہم اللہ جل جلالہ کے دو اسماء الحسنی پر روشنی ڈالیں گے۔ اسماء الحسنی کا پہلا اسم یعنی نام ہے اللہ۔ یہ وہ اسم ہے جو اللہ تعالی کا سب سے بلند اور عزت والا نام ہے۔ اسماء الحسنی میں سب سے اعلیٰ ہے اللہ، the grand name of اللہ۔ اللہ کے اس بہترین نام کا تعارف آیت الکرسی میں ہوا ہے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے اور جو پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے سوائے اس کے جو اللہ تعالی چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمان و زمین کو محیط یعنی ایکسٹینڈڈ اوور ارتھ اینڈ ہیون ہے، اور اس پر گرا نہیں گزرتی یعنی تھکان اور مشکل نہیں آتی۔ وہ بلند اور بالا ہے اور عظمت والا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کا یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ پوری کائنات میں اس نام سے
सिर्फ अल्लाह ताला ही जाने जा सकते हैं। कोई दूसरा इस नाम से नहीं पुकारा जाता। मखलूक में किसी की जुर्रात नहीं कि वो ये नाम रखे, और हम भी अल्लाह के अलावा इस नाम से किसी को नहीं जानते। पुराने सहीफों में भी ये नाम है, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट जो हिब्रू लैंग्वेज में है यानी इब्रानी लैंग्वेज में है, जहाँ इसका जिक्र इलो और इलोहिम से हुआ है, जो अरबिक में इसका माना अल्लाह ही कहलाता है। द फर्स्ट सिविलाइजेशन, द पीपल ऑफ बेबीलोनियन ईरा, जिसे बाबुल कहते हैं, जो कदीम ज़माने के लोग थे, वो भी इला का इस्तेमाल करते थे। ज़माने जाहिलियत में भी कुरैश और मक्का के मुख्तलिफ कबीले के लोग भी अल्लाह के नाम से वाकिफ थे और इस पर ईमान रखते थे, लेकिन अल्लाह को बुतों का बुत यानी आइडल्स का खुदा मानते थे। गॉड ऑफ द गॉड्स यानी बुतों जैसे लात, मनात, उज़्ज़ा, इनके जरिए और वसीले से दुआएं मांगते थे। अल्लाह को सुप्रीम गॉड मानते थे, यानी कि इन्हें वसीला बनाकर अल्लाह से इबादत करते। दूसरे भूतों की पूजा और परस्तिश करते थे, लेकिन अल्लाह के नाम की इज्जत करते और कोई भूत नहीं बनाते। सूरे अनकबूत आया नंबर 61 में आता है, वलइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द वसख्खर अश-शम्स वल क़मरा लयक़ूलुन्ना अल्लाहु फ़अन्ना युफ़कून, जिसका माना ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप उनसे पूछे कि किसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और किसने मुसख्खर किया सूरज और चांद को, तो वो ज़रूर जवाब देंगे अल्लाह ने। फिर सूरे अनकबूत आया नंबर 63 में आता है, वलइन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्द मिन बादि मौतिहा लयक़ूलुन्ना अल्लाह कुलिल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअक़िलून। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछे किसने बरसाया आसमान से पानी और इससे जिंदा कर दिया जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद, तो वो जरूर जवाब देंगे अल्लाह ने। इन आयतों से साफ पता चलता है कि कुरान के नुज़ूल से पहले भी मक्का के काफिर अल्लाह ताला के नाम से वाकिफ थे और ये मानते थे कि आसमान और ज़मीन को बनाने वाला, सूरज और चांद की तख्लीक करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। इसी तरफ आसमान से बारिश नाजिल करने वाला और ज़मीन से नबातात उगाने वाला यानी पौधे उगाने वाला अल्लाह ही है। ये नाम अल्लाह इंतहा ही खूबसूरत नाम है। इस नाम का रूट वर्ड अलिहा या लहू है। अल्लाह का नाम अरबिक ज़बान में 4 मानों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अल-माबूद जो इबादत के लायक, जिसकी इबादत की जाए और उसके अलावा इबादत की जाए और उसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं। फिर दूसरा अल-मलजाह जिसकी पनाह यानी प्रोटेक्शन ली जाए, जिसके अलावा कोई पनाह नहीं, जैसे एक दुआ में आता है, ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, यानी तुझसे और तेरे सिवा कोई सारा नहीं। तीसरा नाम
المفزوح इलैह है। परेशानी और सख्त हालात में जिसकी तरफ रुजू किया जाए, जिससे दिलों को सुकून और तस्कीन मिले। जैसे सूरे रात आया नंबर 28 में आता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्माइन्नुल कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। वो लोग जो ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन होते हैं। आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र के साथ ही दिल मुतमईन होते हैं, यानी दिलों में सुकून हासिल होता है। चौथा, अल महबूब। अल महबूब ये नाम ऐसा है कि जिससे मोहब्बत की जाए और जिसको पाने से और जिक्र करने से दिलों में सुकून मिले। अल्लाह ही हकीकी माबूद है, वही है जिसकी तरफ बंदों के दिल मुतासिर होते हैं, उसी के आगे झुकते हैं, उसी से डरते हैं। वाहिद इलाह है, उसी के है सारे खूबसूरत नाम। जैसे सूरे तहा में आता है, आया नंबर 8 में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। वही अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसी के है अच्छे अच्छे नाम। अल्लाह ताला के इस नाम के साथ हम उसके दूसरे नाम और सिफात जोड़ते हैं। जैसा हम कहते हैं अल्लाह अल गफूर है, अल्लाह अल रहीम है, अल्लाह अल करीम है। अल्लाह को जब हम कहते हैं तो कहते हैं अल्लाह का एक नाम अल गफूर है, अल्लाह की एक सिफत अल गफूर है। अल्लाह ये नाम सबसे अजीम नाम है। अल्लाह अरबिक ज़बान का ऐसा नाम है जिसमें अगर चेंजेस भी की जाए तो उसके मानी नहीं बदलते। जैसे अल्लाह का पहला हुरूफ अलीफ है, जो अलीफ निकाल दिया जाए तो लिल्लाह बनता है। लिल्लाह से लाम निकाल दे तो लहू होता है, और लहू से लाम निकाले तो हु बनता है। तो अल्लाह, लिल्लाह, लहू और हु सब अल्लाह की ही तरफ मुनासिबत रखते हैं। जैसे सूरे बकरा आया नंबर 255 में आता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। फिर सूरे बकरा आया नंबर 284 में आता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फिर आया सूरे हदीद आया नंबर 5 में आता है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। फिर सूरे हश आया नंबर 22 में आता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह जल्ले जलालहू का ये इस्म कुरान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। 2500 यानी 2500 से भी ज़्यादा बार ये नाम कुरान में आता है। कुरान में 33 आयतें अल्लाह के नाम से शुरू होती है। जैसे मैं कुछ बयान करती हूँ। सूरे नम्ल आया नंबर 26 में आता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर सूरे अनकबूत आया नंबर 60 में आता है, अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। फिर सूरे अनकबूत आया नंबर 62 में आता है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। फिर सूरे रूम आया नंबर 11 में आता है, अल्लाहु यब्दउल खल्क़
सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह का ये वो नाम है जिससे मुश्किलात दूर होती है, रहमतों का नुज़ूल होता है, दुआएं कबूल होती है, कमज़ोरियाँ दूर होती है। ये वो नाम है जो मुस्लिम और काफिर के दरमियान फ़र्क पैदा करता है। जो अल्लाह पर ईमान लाया वो मोमिन है और जिसने झुटलाया वो काफिर है। जिसने अल्लाह पर ईमान लाया और जान लिया उसके लिए दोनों जहां की कामयाबी है। जिसने रिजेक्ट किया और ना माना, ना ईमान लाया, उनके लिए नाकामी यानी फेलियर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला का एक इस्म आज़म है जिसके साथ दुआ की जाए तो कबूल होती है, लेकिन ये इस्म आज़म हमसे पोशीदा यानी छुपा कर रखा गया है। इस इस्म आज़म के मुतालिक उलमा का डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ उलमा का कहना है कि अल हय्यु वल कय्यूम इस्म आज़म है। सेकंड ओपिनियन ये है कि इस्म आज़म अल्लाह ये नाम है। अल्लाह ये नाम सबसे ज़्यादा पुकारा जाने वाला नाम है। ज़्यादातर मसनून दुआ में अल्लाह का ये नाम आता है, जैसे अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु आया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। फिर अल्लाहुम्मा आफीनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफीनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफीनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहलन। जैसे उर्दू में हम या अल्लाह कहकर पुकारते हैं, इसी तरह अरबी ज़बान में ये रूल है कि हू के बाद मीम लगाया जाए तो अल्लाहुम्मा बनता है, जिसका मानी या अल्लाह होता है। नमाज के हर रुक्न में, हर एक्शन में हम अल्लाह का ये नाम इस्तेमाल करते हैं। नमाज की शुरुआत अल्लाहु अकबर कहकर करते हैं। सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं। जब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाते हैं, समिअल्लाहु लिमन हमीदा कहकर रुकू से उठते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर सजदे से उठते हैं। तशहुद में भी अल्लाहुम्मा सल्ले अला कहते हैं। सलाम फेरते हैं तब भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं। इसी तरह दिन भर के काम भी अल्लाह के नाम से शुरू होते हैं। जब सुबह सोकर उठते हैं तो भी अल्लाह को पुकारते हैं, जैसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। खाना खाते हैं तो भी बिस्मिल्लाह कहते हैं। अगर भूल जाए तो बिस्मिल्लाहि फी अव्वली व आखिरी कहते हैं। फिर जो 4 प्राइमरी अस्कार है यानी तस्बीहात है, उनमें भी अल्लाह का नाम आता है, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। जब रात में सोते हैं तो अपने दिन का इख्तिताम भी अल्लाह के नाम से करते हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इस नाम अल्लाह की बहुत सी बरकत है।
یہ نام جب لیا جائے تو تنہائی کا احساس ختم کرتا ہے، خوف میں جب پکارا جائے تو قرار آتا ہے، تکلیف اور گھبراہٹ دور کرتا ہے، تنگی میں پکارا جائے تو کشادگی آتی ہے، مظلوموں کی پکار اور فریاد سنی جاتی ہے۔ یہ نام کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، یہ نام میزان کو وزنی بناتا ہے، اس سے رزق میں برکت اور کشادگی آتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6682 میں آتا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن آخرت میں میزان پر بھاری ہے اور اللہ کو پسندیدہ ہے، وہ کلمات یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے جو حدیث نمبر 388 ہے، جس میں ان اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا قالت علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمات اقولہن عند الکرب اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسماء بنت امیس سے روایت ہے، رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ سکھائے جو غم اور پریشانی یعنی ڈسٹریس میں دہرائے جائے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ رات کو سوتے وقت بسم اللہ کہہ کے بستر جھکے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے کہا، اے اللہ تو نے سب کو رزق واضح طور پر دیا لیکن میرا رزق کیا؟ اللہ نے فرمایا، جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہے۔ پھر جس مجلس میں اللہ کا نام نہ لے تو وہ حسرت کا باعث ہے، جب بھی اللہ کا نام لیا جائے وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو بار بار پکاریں۔ پھر ہمارا دوسرا نام جو ہم آج لینے والے ہیں وہ ہے الرحمن۔ الرحمن یہ نام اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام کا ذکر کریں گے، یہ نام ہے الرحمن۔ جیسے بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں آتا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ الرحمن اللہ کا یونیک نام ہے۔ اللہ اور الرحمن یہ دونوں نام پرائمری نام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم 57 ٹائمز آیا ہے، اس میں سے 50 ٹائمز یعنی 50 مرتبہ الرحمن آیتوں میں اکیلے آیا ہے اور 7 مرتبہ دوسرے ناموں کے ساتھ آیا ہے، یعنی دوسرے صفات کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ قولت
इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुन्त तक़िया। ये सूरे मरियम की आया नंबर 18 है। फिर सूरे रहमान में भी ये नाम आया है, आया नंबर 51 में। सूरा रहमान 55 और आया नंबर 1 में आया है, अर्रहमान अल्लमहुल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। फिर सूरे तहा में आया नंबर 5 में आता है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। फिर सूरे बकरा में आया नंबर 168 में आता है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। जैसे कि मैंने बताया है कि रहमान का रूट वर्ड रहमा है। इस रूट वर्ड से 5 नाम या सिफातें मिलती है, जैसा अर्रहमान, अर्रहीम, अरहमुर राहिमीन, खैरुर राहिमीन, ज़ुर्रहमा। जैसे इसमें कुछ आयतें हैं जो ऐसे शुरू होती है, जैसे सूरे बकरा की आया नंबर 163 स्टार्ट होती है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। फिर सूरे यूसुफ की आया नंबर 92, कौला ला तस्रिबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। फिर सूरे मोमिन की आया नंबर 118, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। फिर सूरे कहफ की आया नंबर 58, वरब्बुकल गफूरु ज़ुर्रहमा लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब। जैसा हम जानते हैं कि रहमा से रहम है और इनके मानी है मर्सी, रहम करने वाले, टेंडरनेस, काइंडनेस, जो उम्मीद और आरजू को उभारती है, मायूसी को दूर धकेलती है। अरबी ज़बान में जब फेल के आगे अलीफ और नून आता है तो वो लफ्ज़ में शदीद ज़बरदस्त का इजाफा होता है। रहम से जब अर्रहमान बनता है तो इसका माना शदीद और ज़बरदस्त रहम करने वाला बनता है। अर्रहमान अल्लाह बहुत ही मेहरबान है। सूरे आनाम आया नंबर 54 में आता है, कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमान, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर दिया है। जैसे हदीस में आता है, अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम्मा खलक़ल्लाहुल खलक़ कतब फी किताबिही फहुवा इंदहु फ़ौक़ल अर्श इन्ना रहमती तालिबुल ग़ैज़ ग़दबी तालिमुल ग़दबी। सही बुखारी की हदीस है 2751 कि जब अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक की और जब अपने अर्श पर थे, अपनी किताब में ये लिखा कि बेशक मेरी रहमत मेरे गुस्से और मेरे गज़ब पर गालिब है। जैसे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله مئة رحمة فوزع واحدة بين خلقي وخبا عنده مئة إلا واحدة. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2752، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس میں سے ایک حصہ یعنی ایک پارٹ اپنی تمام کائنات اور مخلوقات میں نازل کیا ہے، اور 99 یعنی 99 حصے یوم القیامہ کے لیے مخصوص کیا ہے. پھر دوسری حدیث ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوامن فبها يتغاضون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأكثر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، جس کا معنی یہ ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے ہیں. اس میں سے ایک حصہ اس نے جنوں، انسانوں، مواشیوں یعنی جانوروں، کیڑے مکوڑوں کے درمیان نازل کیا ہے، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوقات کے درمیان محبت اور رحم دلی ہے. یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور رحم دلی سے پیش آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے یوم القیامہ کے دن اپنے بندوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھا ہے. ایک حصے کی رحمت جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتاری ہے، یہ سب کے لیے عام ہے، انسانوں، جنات میں ایمان والوں پر بھی اور کافر اور مشرکوں پر بھی. اسی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دنیا میں ہر طرح کی رحمت دیتا ہے، مال، دولت، اولاد، رزق انہیں بھی ملتی ہے. لیکن 99 حصے صرف اور صرف اللہ کے بندوں پر ہی ہے جو یوم القیامہ کے دن کے لیے رکھا ہے. پھر جیسے آتا ہے سورہ رحمان میں، الرحمن علی العرش استوی، اللہ تعالیٰ کا جو لارجسٹ کریشن ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اور اللہ کا عرش، جب عرش کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس صفات الرحمن کا استعمال کرتے ہیں، جیسے الرحمن علی العرش استوی. پھر جیسے دوسری آیا جو سورہ طٰہٰ کی، سورہ فرقان کی ہے، آیا نمبر 59 ہے اور سورہ 25 ہے، جس میں آتا ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا. وہ نیک بندے جو اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے. جو بندے اللہ کی رضا کو اپنی رضا کے آگے رکھتے ہیں، اس کی خوشی میں
अपनी खुशी तलाश करते हैं, जैसे आता है सूरह कसस में आया नंबर 73 में, वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनु फीही वलितब्तगु मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला ने रहमत ही में से रात और दिन को बनाया, दिन को सूरज से रोशन बनाया ताकि तुम रिज़्क़ को तलाश कर सके, रात को चांद की ठंडक दी, जब हवा चलती तो अल्लाह की रहमत बरसती है। फिर सूरह अल फुरकान में आया नंबर 48 में आता है, वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुश्रम बैन यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस्समाई माअन तहूरन। वही है जो हवाओं को भेजता है अपनी रहमत से बशारत यानी खुशखबरी बनाकर, और आसमानों से साफ और पाक पानी नाजिल कर देता है। हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए कि हम एक दिन में अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानियां करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें पलटने का मौका देते हैं कि हम इस्तिग़फ़ार करें और तौबा करें। जब हम अपने रब को नाराज़ करते हैं तब भी वो हमें नहीं छोड़ता, बल्कि हमें इस्तिग़फ़ार और तौबा के मौके देता है। दुनिया में अल्लाह की रहमत सबके लिए आम है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब बंदों में फ़र्क कर दिया जाएगा। एक तरफ इताअत गुज़ार और फर्माबरदार बंदे होंगे और दूसरी तरफ नाफरमान होंगे। इताअत गुज़ार पर वो रहमत पूरी करेगा और गुनहगारों में से भी बहुत सौ को बख्शेगा, सिर्फ शिर्क करने वालों को नहीं माफ़ करेगा। हम अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। जैसे सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में अल्लाह का इरशाद है, कुल या इबादिल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, ए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह के रहमत से मायूस न होना। यकीनन अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, यकीनन बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। फिर सूरह हिज्र में आया नंबर 56 में आता है, क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्लज़्ज़ाल्लून। अपने आप ने कहा, कौन होगा जो अपने रब से मायूस हो सिवाय गुमराहों के। हमें अपने कोताहियों और गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और तौबा करना चाहिए। आइए हम अपने इस बयान का इख्तिताम दुआ से करते हैं। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करें। ए अल्लाह, अपनी तमाम नामों के वसीले से, अपने तमाम नामों के ज़रिए से हम पर अपनी रहमत फरमा, हमें उनकी पहचान करवा दे, हमें आपके ज़ात की मारिफत दे, जिससे हमारे ईमान और यकीन में इजाफ़ा हो और हमारे लिए आपकी इबादत आसान हो और हमारे दिलों में आपकी मोहब्बत
اور چاہت کا ذوق پیدا ہو۔ اے اللہ آپ ہمارے اس کام کو آسان بنا دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔